કાલે રાત્રે 10 વાગે રાણકપુર એક્સપ્રેસમાં નીકળ્યા અમે. ગઈકાલે 21મી નવેમ્બર હતી. હું ને હિમાની બરોડાથી બેઠા. ચેતન, જિજ્ઞા અને કૃતિન અમદાવાદથી બેઠા રાત્રે 1 વાગે. ત્યાંથી આબુ રોડ સવારે 10 વાગે આબુ રોડ ઉતર્યા. આબુ રોડ પર અમારા ડ્રાઈવર આવી ગયા હતા ગાડી સાથે, ટાટા ઇન્ડિકા સાથે. વ્હાઇટ કલરની ઘણી સારી ગાડી છે. ત્યાંથી સીધા જેસલમેર આવી ગયા. જેસલમેર હોટલ મહેલમાં ફ્રેશ થઈને અત્યારે સમ સેન્ડ્યુલ્સ જઈએ છે. અત્યારે ગાડીમાં જઈએ છીએ. આગળથી પછી ઊંટની સવારી છે અને ત્યાંથી પછી આગળ ટેન્ટમાં. હાય કૃતિન. આવી ગયા છે કેમલ રાઈડ કરવા માટે. આવ્યા છે સ્પેશિયલ. ક્યાંથી આવ્યા છો બેન? આ બીજા છે ક્યાંક વાયા વિરમગામ આવ્યા છે કેમલ રાઈડ કરવા માટે. भैंस पे बैठती है डेली। ए भाई क्या बड़े ले। पहले आप में गाड़ी निकल जाएगी। खड़ा होने के बाद दे देंगे बच्चों। अब इसको दौड़ाना ना था। हाँ। इसको तो SMS आ फाइल केम ले अरे भाई तेनु कागज છે કે પછી છે પાડે છે? કૃતિન જો પપ્પા ચાલ્યા જો. જા 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 પપ્પા બોલાવે. મજા કરે છે એમ ને સેન્ડ્યુલ્સ માં. ચાલ બેટા એવું પડે. જીગુ ચાલ ને. जाओ जाओ अरे जाओ ना क्या पप्पा ने नीचे नहीं आवे भाई ताती. नहीं जाऊं सब कोल्ड ड्रिंक मिनरल वाटर। नीचे बोला हेलो सर कोल्ड ड्रिंक चाहिए? આ બધા સેન્ડ્યુલ્સમાં આવ્યા છે અને પછી રાત્રે કેમ્પ ફાયર થશે ને એનો ફોક ડાન્સ થશે. આ બધા ટેન્ટ્સ છે. આવું નથી જો મેમ આપણે જાવું તો પપ્પાને જોડે પપ્પાને કાંઈ તોફાના ઘરે મૂકી જગ્યાએ કબીર વળ ગયા ને આ બીજા આટલો એવો જોઈએ ને અંદર ખેંચતા જાય મારું પછી બસો પાણી કરી ગયું હવે ખબર પડશે પપ્પાને ચડતા નીકળશે પપ્પાને કે રોજ અહીંયા આગળ પપ્પા એક અઠવાડિયા પરત ચડતા સર પહોંચી જાય ભરાઈ ગયા ને. ભરાઈ ગયા છે ને ભારે નથી થયા ને. અરે તો નથી અચ્છા તો બરાબર. દરિયામાં પલળ્યા હશો પછી કપડા કઈ બદલવાનું
અમારો ટેન્ટ સમ સેન્ડ ડ્યુન્સમાં ગઈકાલે જઈ આવ્યા ને પછી રાત્રે અહીં ટેન્ટમાં રોકાયા હતા. આ બધા અલગ અલગ ટેન્ટ છે. અહીં ગઈકાલે કલ્ચરલ પ્રોગ્રામ કર્યો હતો. અમારું એક ગ્રુપ હતું અને 3 છોકરીઓ હતી ઇંગ્લેન્ડથી. બસ એટલા જ હતા. સવારની ચા થઈ ગઈ છે, હવે પૂરી ભાજીની રાહ જોવાય છે. આ છે અમારા માનવંતા ચેતન કુમાર એનઆરઆઈને સાથ આપનારા આરાઈ આરાય સેતન એન્ડ ઝિગ્ના. અને આ છે અમારા સ્ટોરી રાઇટર. સ્ટોરી રાઇટર નથી, તો ડિટેલ્સ લખું છું. ડિટેલ્સ રાઇટર અને આ છે. બધું રેકોર્ડ ના કર. કેમ? ક્યાં પૂગ્યા? આઈટમ જ છે ના. પેલા ગોગલ્સ શેના માટે છે? ક્યાં આવ્યો ચેતન? ગદીસર લેક. ગડીસર લેક એમ ને. આજની શુભ શરૂઆત. શુભ શરૂઆત 11:10 થઈ આજની. પૂરી ભાજી તો કાલના ખાતામાં હતા. જેસલમેરના ગડીસર લેકમાં બોટિંગ કરી હતી. સેમ કલર, સેમ પેટર્ન, સેમ ડિઝાઇન. મેં નામ જેસલમેરના સક્રિય છે. મને બતાવો ને. એ કૃતિન એવું કેમ હોય? કૃતિન આ જૈન મંદિર છે. જેસલમેરમાં જે ઉપર ફોર્ટ છે એમાં આવ્યા અને ઉપર આ જૈન મંદિર છે. શ્વેતાંબર મંદિર. પાર્શ્વનાથ ભગવાન છે. વિરલ અને હિમાની શંભુનાથ ભગવાનની આરતી ઉતારે છે. બંધ કરી દો. વિરલ આ જૈનોનું વર્ષો જૂનું ઓરિજિનલ લખાણ છે અને ચિત્રો છે. બતાડું છું બેટા. તું જોઈ લો. આ શું છે બધું? ચિત્રો.
આ છે કુંજુનાથજીનું મંદિર, હજુ જૈન મંદિરમાં જ છે. જો અહીંયાથી આ જે મંદિર જોઈ આવ્યા એમાં 450 મૂર્તિ છે અને ટોટલ 6666 મૂર્તિ છે, 9 મંદિર મળીને. 9 મંદિરમાં થઈને. 1400 થી 1500ની સદીના મંદિર છે બધા. જૈન મંદિર કિલ્લામાં ઉપર છે. કિલ્લામાં ફરીએ છે, બંને બાજુ દુકાનો છે, વસ્તુઓ વેચાય છે. શું מה לראות? મસ્ત છે પેલું પણ. હાથી ખરીદી લેવા 5. आगे वो वाला आगे. ફોર્ટમાં ઉપર જ રૂફટોપ રેસ્ટોરન્ટ પર આવ્યા છે લંચ માટે. આ છે આખો કિલ્લો. આ છે અમારું લેક વ્યૂ રેસ્ટોરન્ટ. નીચે ગામ છે, અંદર પણ ગામ છે. અમે નીચે રહ્યા છે લેક પાસે.
પટવાની હવેલી છે એનું આ કોતરણી કામ છે. આજે 24 તારીખ થઈ. જોધપુરમાં ઉમેદ ભવન પેલેસમાં આવ્યા છે. અમારી જોડે ગાઈડ છે. जो महाराजा केसरी जी वो देखिए बनवाई क्रिस्टल ग्लास मेन्यू फ्रेम्स प्लेटेड एंड वर्क प्लेटेड है और ये कोने पे रिकॉर्डिंग वाला ग्राउंड और ये इनका टी सेट सामने रखे हुए कप सब वो सब चांदी के हैं, वो सब पोलो में जीते हुए हॉर्स पोलो. રાજાની બધી અલગ અલગ એન્ટિક વોચીસ છે. એન્જિન બનાવેલું છે અને એમાં વોચ છે. બધી એન્ટિક ઘડિયાળ છે. કેવું પડે શું છે? ઓહ, કેટલી નાની છે. जो पेंडल में घड़ियाल करते जो सुगम पुट्टी खेते आ जो पेंडल नहीं आता હવે તો રૂટે આ છે રાજાનો પેલેસ. બહારથી આગળનો ગાર્ડન છે. આ સાઈડ હોટલ બનાવી દીધી છે અને અહીં અંદર મ્યુઝિયમ બનાવ્યું છે.
આ રાજાનું રેસિડેન્સ છે. 35 રૂમ છે રેસિડેન્સમાં. હોટલમાં 100 રૂમ છે. સૌથી સસ્તામાં સસ્તી 19,000ની રૂમ અને મોંઘામાં મોંઘી 1,75,000. પ્રિન્સ ચાર્લ્સ 2 વર્ષ પહેલાં આવીને રહી ગયા હતા રાજા જોડે. અત્યારે રાજાનો બિઝનેસ છે, હોટલ બિઝનેસ. જોધપુર, આબુ, દિલ્હીમાં હોટલો છે એમની. આ છે મહેરાનગઢ. અમે ઉમેદ ભવન પેલેસથી નીકળીને મહેરાનગઢ જઈ આવ્યા. લગભગ કલાક 1.5 કલાક આખો મહેલ ગઢ જોવાનો છે. લિફ્ટ બનાવી દીધી છે હવે, એટલે લિફ્ટમાં ઉપર ગયા ગાઈડને લઈને અને પછી ધીરે ધીરે ઉતરતા નીચે આવ્યા બધું જોતા જોતા. આ ગઢ બનાવતા 300 વર્ષ લાગ્યા હતા, પણ અંદરથી જોઈને લાગે નહીં કે આ અલગ અલગ સ્ટેજીસમાં બન્યો હશે. એવું એક સાથે જ બન્યો હશે એવું જ લાગે. એમાં બધી અલગ અલગ જાળીની ડિઝાઇન છે. 285 જાતની જાળી છે અલગ અલગ ડિઝાઇનની. બહુ મસ્ત ગઢ છે. ગાઈડે ઘણું સારું સમજાવ્યું બધું. મહેરાનગઢની સામે જ આ જસવંત થડા છે. જસવંતસિંહજીની સમાધિ છે અહીંયા આગળ. એટલે આ ક્રિમેશન ગ્રાઉન્ડ છે ફોર કિંગ ફેમિલી. આખું માર્બલનું બનાવ્યું છે. આ છે અમારી ગાડી ટાટા ઇન્ડિકા. અમારા શેરસિંહ મસ્ત ડ્રાઈવર છે. આગળ મેડમ બેસી ગયા છે આજે કૃતિનને લઈને. पास में है ना, वो गली में ही है. આજે સવારે પુષ્કર દર્શન કરીને પુષ્કરથી નીકળીને અજમેર ગયા. અજમેર દરગાહમાં દર્શન કરીને અત્યારે ચિત્તોડગઢ આવ્યા. ચિત્તોડગઢનો 13 કિલોમીટર લાંબો કિલ્લો છે અને અત્યારે ઉપર આવ્યા તો 9 દરવાજા વટાઈને આવ્યા. બહુ જબરજસ્ત મોટો કિલ્લો છે. અત્યારે એ મંદિરમાં છે ને મંદિરથી આગળથી આનું શૂટિંગ કરીએ છીએ. આ રાધા કૃષ્ણનું મંદિર છે. આ બાજુ મીરાનું મંદિર છે. આ મીરા દેવીનું મંદિર છે, મીરાબાઈનું. અહીંયા આગળ એક કૃષ્ણની ભક્તિ કરતી હતી અને એને વિષ આપ્યું હતું. એ વિષ અમૃત થઈ ગયું હતું.
इन 7 दरवाजों का निर्माण करा था 15वीं शताब्दी में। इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी दिशा में है, सूरज पोल के नाम से। पोल मीन्स गेट। वेल फिश कंडीशन का फोर्ट है। अगर एरोप्लेन से, वायुयान से दुर्ग को आप देखते हैं तो मछली इस दुर्ग पर, इस धरती पर आपको पड़ी हुई दिखाई देती है। मछली की आकृति का है, नॉर्थ है इसका, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड। तो सन डायनेस्टी बापा रावल ने 8th सेंचुरी में यहाँ पे स्थापित की थी। गुजरात की डर से बापा रावल आए थे। अंतिम मौर्य शासक महानमल मौर्य को परास्त किया था। उससे पहले इतिहासकारों के अनुसार इस दुर्ग की रचना की थी 5वीं शताब्दी में। चित्रांगद मौर्य ने इस पहाड़ी पर फोर्ट बनाया था। उसने नाम रखा था चित्रकूट। चित्रकूट का ही अपभ्रंश शब्द चित्तौड़गढ़ है। बापा रावल आए, उन्होंने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को बनाई। तो अपने पराक्रम से बापा रावल ने मेवाड़ स्टेट की सीमाएं काबुल, कंधार, ईरान, इराक तक फैलाई। हिंदुआ सूरज, राजगुरु, चक्रवर्ती राजा की उपाधि पाई। तो अंत तक यहाँ पर सूर्यवंशी राजाओं का ही आधिपत्य रहा। उस दौरान इस किलेबंदी व्यवस्था का 3 बार विनाश हुआ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर अटैक किया रानी पद्मिनी को पाने के लिए। पद्मिनी इतनी सुंदर रानी थी कि जब पानी पीती थी तो गले से लिखा देता। तो उसके सौंदर्य का चर्चा जब दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हुआ तो 72 वर्षीय बूढ़े अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर अटैक किया। इस किले पर आप देखेंगे 84 पानी के तालाब है, उनमें से 24 इतने बड़े हैं। साल भर पानी से भरे रहते हैं, जल से कभी रिक्त नहीं। पानी की आज भी कोई समस्या नहीं है, उस जमाने में भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार उसे हार के यहाँ से जाना पड़ा। 4 महीने बाद जब वो आया भारी सैनिकों के साथ में तो इस किले को 3 तरफ से उसने घेर लिया। 6 महीने का जो राशन इस दुर्ग पर था वो राशन समाप्त हो गया। तो कहा जाता है कि रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से छुटकारा पाने के लिए अपनी रानी का चेहरा दिखाया था। आगे एक पैलेस आप विजिट करेंगे, ये रॉयल पैलेस है। आगे गर्मी के 4 महीने रहने के लिए रानी पद्मिनी जिन महलों को यूज़ करती थी, वाटर पैलेस एंड समर पैलेस, वहाँ से रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन दिखाया गया था। क्योंकि 72 वर्षीय बूढ़े ने अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था रतन सिंह को, रानी पद्मिनी के पति को, कि आप अपनी सुंदर रानी का चेहरा मुझे दिखा दें कांच के अंदर, तो मैं यहाँ से लौट जाऊँगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचूंगा। तो कहा जाता है कि रानी पद्मिनी का वहाँ से रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसके मन में धारणा दृढ़ हो गई कि ये केन प्रखंड रानी पद्मिनी को पाना है, कि कैसे भी करके छल बल से मेरे को रानी पद्मिनी को पाना है। तो पुनः इस किले पर उसने आक्रमण किया। तो इस बार राजपूत सैनिक संख्या में कम थे, राजपूतों की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन यहाँ के वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर घोड़ों पर सवार होकर निश्चित मृत्यु की ओर रणभूमि में अग्रसर हुए, निश्चित मृत्यु का वर्णन करने के लिए। 6 महीने तक उसने दूसरी बार जब घेराबंदी की, 6 महीने का राशन समाप्त हो गया तो राजपूतों ने सोचा कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना आमने सामने होकर शत्रुओं से संघर्ष करके मारा जाए। तो केसरिया बाना धारण कर राजपूत सैनिक निश्चित मृत्यु का वर्णन करने के लिए रणभूमि में गए। और रानी पद्मिनी ने सोचा कि हमारे सैनिक संख्या में कम है, राजपूत सैनिकों की संख्या कम है, राजपूतों की मृत्यु निश्चित है, तो उनकी निश्चित वेश किया और अपने आप को जीवित चलाया ताकि विरोधी आए तो उनके शरीर को स्पर्श ना कर पाए। तो मरण उत्सव यहाँ पर मनाया जाता था, मृत्यु का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता था। यहाँ के वीर रणबंके केसरिया बाना पहनकर घोड़ों पर सवार होकर निश्चित विरोध की ओर वो जाते थे और रानियाँ अपने आप को आन बान और शान की रक्षा के लिए अग्नि में अपने आप को झोंक देती थी, समाधि ले लेती थी, अग्नि में स्नान करती थी। 16,000 लेडी सर्वेंट के साथ पद्मिनी ने प्रथम जोहर किया था 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों से बचने के लिए। 1535 में बहादुर शाह गुजरात के शासक ने इस किले पर अटैक किया। उस समय राजमाता कर्मावती राणा सांगा की वाइफ का शासन था। राजमाता कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी हेल्प के लिए, लेकिन हुमायूं विलम्ब से आया, उससे पहले बहादुर शाह आ गया। तो बहादुर शाह से फाइट करते हुए सारे राजपूत सरदार और मंत्री वगैरह सभी मारे गए। तो राजमाता कर्मावती ने द्वितीय जोहर किया था नियर विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ के समीप। जो सभी कुलीन स्त्रियाँ थी, सभी दासियाँ थी, लेडी सर्वेंट थी, उनके साथ में अग्नि में प्रवेश कर अपने आप को जीवित किया। उसके संख्या के बारे में मतैक्य नहीं है। कुछ इतिहासकार 32,000 बताते हैं, कुछ इतिहासकारों के अनुसार 13,000 महिलाओं के साथ में रानी कर्मावती ने जोहर किया था। 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले पर चढ़ाई की, क्योंकि हिंदुस्तान के सभी राजा महाराजा मुगलों की दास्ता को स्वीकार कर चुके थे। मेवाड़ के महाराणा उनके कदमों में नहीं झुकते थे, तो मेवाड़ को अपने कदमों में झुकाने के लिए अकबर ने 1568 में इस किले पर चढ़ाई की। उस समय उदय सिंह राणा प्रताप के पिता का यहाँ पर शासन था। उदय सिंह के पास में सेनाएं, धन, साधन बहुत कम थे, लेकिन फिर भी लड़ते हुए मरना चाहते थे, संघर्ष उनसे करना चाहते थे। लेकिन उनके सेनापति थे, मुख्य सेनापतियों में से जयमल, फतेह, अल्लाह राठौड़, केसर सिंह आदि ने उनको यह समझाया कि अगर आप यहाँ पर मर जाएंगे तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो मजबूरी में उदय सिंह ने यहाँ का सारा धन लिया, अपने परिवार सहित अरावली की पहाड़ियों में गए और अपने नाम से मेवाड़ की नई राजधानी बनाई, उदयपुर। परंपरा से हटकर उन्होंने राजधानी बनाई थी मेवाड़ की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। तो अकबर ने यहाँ के सेनापति को लालच दिया कि औपचारिक अधिपति हमारा आप स्वीकार कीजिए, हम आपका राजा बनाएंगे, लेकिन फतेह जी ने उनको स्पष्ट मना कर दिया। यहाँ का सारा चार्ज यहाँ के सेनापति फतेह जी को देकर गए थे उदय सिंह।
तो अकबर ने उनको लालच दिया कि हम आपको यहाँ का राजा बनाएंगे, हमारा आप अधिपत्य स्वीकार कीजिए। लेकिन फत्ता जी ने उनको स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप राजा बनाने वाले कौन हैं? एकलिंग जी के दीवान स्वयं उदय सिंह ने मेरे को इस किले का राजा बनाया है। इस किले पर आपको अधिपत्य पाना है तो मेरे शरीर के आपको 2 टुकड़े करने होंगे। तो 7 दरवाजे से आप ऊपर आए हैं। अंतिम जो द्वार था रामपोल, उसी के सामने फत्ता जी का स्मारक बना हुआ है। लड़ते हुए फत्ता को मुगलों के हाथी ने वहीं पर पटक दिया था, वहीं पर उनका प्राणोत्सर्ग हुआ था। तो मरने से पूर्व यहाँ के सेनापति फत्ता जी ने जो वार किए थे, उन वारों से स्वयं अकबर 3 बार मरते मरते बचा था। बाद में अकबर के सैनिक यहाँ पर आए तो फत्ता जी की पत्नी, सेनापति की पत्नी फूल कौर के नेतृत्व में इस दुर्ग पर जितनी भी महिलाएं थी, सभी महिलाओं ने अपनी अबोध वीर्य संतानों को गोद में लिया और हंसते हंसते अग्नि में प्रवेश किया ताकि मुगल उनके शरीर को स्पर्श न कर पाए। तो तीसरा जोहर जन जोहर के नाम से जाना जाता है। उस जोहर में इस दुर्ग की प्रत्येक महिला ने अपने बच्चों के साथ में जोहर किया था। उसके बाद में मुगल यहाँ पर आए, उन्हें धन नहीं मिला, सुंदर स्त्रियाँ नहीं मिली, तो स्थापत्य कला से समृद्ध मंदिर, महल, स्तंभ, छतरियों और पटियों पर उन्होंने अपना क्रोध निकाला, जो राजपूती वीरता और प्रणय की प्रवाही यादगार थी। तो ये फोर्ट आप देखेंगे 121 मंदिर है, अरबों खरबों हिंदू देवी देवता की मूर्तियां हैं, एक भी मूर्ति सुरक्षित नहीं है। ये मुगलों की बर्बरता का, उनकी धर्मांता का, उनकी कट्टरता का जीवंत प्रमाण है। तो ज्योग्राफिकली एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है, हिस्ट्रिकली नंबर 1 फोर्ट है, क्योंकि मीरा की भक्ति, राणा प्रताप की शक्ति, राणा सांगा का पराक्रम, पन्ना धाई का बलिदान, जयमल फत्ता की स्वामी भक्ति, भामाशाह की दान वीरता और पद्मिनी का सौंदर्य इस दुर्ग को विश्व के अनेक दुर्गों से महान बनाता है, दुर्लभ बनाता है। हरिवंश राय बच्चन नाम से एक कवि हुए हैं, उन्होंने इस दुर्ग की प्रशंसा में कहा है, मुझे न भेजो मथुरा, मुझे न जाना काशी, तीर्थराज चित्तौड़ को देखने मेरी आँखें कैसी। तो यहाँ पे गोमुख कुंड आप देखेंगे, उसके बारे में भी ऐसा प्रचलित है कि झरना झरे गोमुख भरे, झरना झरे गोमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों युग को तपस्या करे तब आवेगा चित्तौड़। तो शक्ति और भक्ति की नगरी पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो रॉयल पैलेस आप देखना स्टार्ट करें, ग्रहण करें। 7 सफेद घोड़े यहाँ पर बनते थे। 7 सफेद घोड़े भगवान सूर्य के वाहन, उनके प्रतीक माने जाते हैं। राजा के रथ में लगने वाले राजा के निजी घोड़े यहाँ पर बनते थे, उनकी यहाँ पर पूजा होती थी। तो जिस एंट्रेंस से आप इस डोर से आए हैं, ये घोड़ों के लिए द्वार था। इस महल का भी मेन एंट्रेंस ईस्टर्न साइड में है, पूर्वी दिशा में। शाही नौबत खाना है इस महल का। म्यूजिशियन यहाँ पर बैठता था, शाही स्वरलेरियां बिखेरने के लिए सहनाई बजा रहा था। राजमहल है, सभी राजाओं ने अपना शासन यहीं से संपादित किया था, लेकिन 1433 में मेवाड़ स्टेट की गद्दी पर महाराणा कुंभा बैठे तो इस महल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन कार्य कराए। इस वजह से इन महलों को राणा कुंभा के महल भी कहा जाता है। त्रिपोली गेट ईस्टर्न साइड में इस पैलेस का मेन एंट्रेंस आप देख रहे हैं। व्हाइट बिल्डिंग जो सामने आप देख रहे हैं, इस फोर्ट की सबसे लेटेस्ट बिल्डिंग है। 1905 से 1922 के बीच में उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने इसको बनाया था। फतेह प्रकाश इसे कहा जाता है। ऊपर वाली बिल्डिंग में स्टेट गवर्नमेंट, नीचे वाली बिल्डिंग में स्टेट गवर्नमेंट का म्यूजियम है, ऊपर वाली बिल्डिंग में इंग्लिश स्कूल चलता है। इट वाज ए फोर्ट सिटी। नीचे जो शहर आपने देखा था 1857 की क्रांति के बाद नीचे बसाया गया था। राजा और प्रजा इसे दूर के ऊपर रहते थे। 700 एकड़ में फैला हुआ भूभाग। ये फोर्ट है, वो वहाँ तक उससे भी आगे है, तो आधा भी नहीं देख पा रहे हैं अभी। 10% आपको दिखाई दे रहा है। मंदिर है वो आगे टेम्पल है, उसके आगे पद्मिनी पैलेस। उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। राणा कुंभा कला मर्मज्ञ थे, विद्यानुरागी थे, सभी शास्त्रों में प्रवीण थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया जैसे कई ग्रंथों की रचना की थी और अनेक ग्रंथों पर टीकाएं लिखी थी। जैसी कल्पना राणा कुंभा करते थे, वैसी कल्पना को जीवंत साकार करते थे। मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, उनमें से 32 अकेले महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। इसी दुर्ग पर राणा कुंभा की कल्पना के जीवंत प्रमाण के रूप में आप देख सकते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ और नियर मीरा टेम्पल, बड़ा टेम्पल जो आप देख रहे हैं कुंभ श्यामा टेम्पल। आगे का भाग सोमनाथ की शेप में है, पीछे का शिखर जगन्नाथपुरी, गगनचुंबी इसका शिखर है नागर शैली का। तो राजपूत और जैन स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण कार्विंग में आप देख सकते हैं। सामने मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई के मंदिर के आगे एक फ्लैग दिखाई दे रहा है आपको, झंडा। मीरा के गुरु संत रैदास की समाधि है। भक्त शिरोमणि चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे। इन्होंने मीरा को बचपन से ही सिखाया था कि कोई भी चीज खाते हैं, पीते हैं, श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तो विष भी अमृत होता है। इसके बारे में, मीरा के बारे में आपको थोड़ा और बता दूं। यहाँ पे आपको क्या मैं जानकारी दे दूंगा तो फिर आगे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। विशेष उल्लेखनीय नाम आता है राणा सांगा का, राणा कुंभा के बाद में। राणा सांगा जिनके 80 घाव शरीर पर थे, एक आंख बचपन में अपने भाई के साथ तीर कमान से खेलते हुए फूट गई थी, एक टांग से लंगड़े थे, एक हाथ इब्राहिम लोदी के साथ दिल्ली के युद्ध में कट गया था। लेकिन युद्ध के मैदान में जाने से कतराते नहीं थे। विरोधी सैनिक उनके नाम से थरथर कांपते थे। अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनके जैसे 4 मजबूत उत्तराधिकारी और होते तो मुगलों के पैर भारत में जमने नहीं पाते। तो राणा सांगा संग्राम सिंह के नाम से इतिहास में जिन्हें जाना जाता है। संग्राम में जो सिंह था, विरोधी सैनिक उनका नाम सुनकर युद्ध का मैदान छोड़ दिया करते थे। खानवा के युद्ध में जब वो मूर्छित हो गए तो अपने ही सैनिकों ने दवा के अंदर जहर मिला के उनको दिया, जिससे उनकी हत्या हुई थी।
राणा सांगा के 7 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज सिंह, मीरा के पति। 4 वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। उसकी शादी हुई 1516 में। 1520 में बीमारी के कारण भोजराज की मृत्यु हो गई, मीरा विधवा हो गई। आप जानते हैं कि राजपूतों में सती प्रथा का प्रचलन था, जौहर भी था। तो मीरा अपने आप को विधवा नहीं मानती थी। उसको कहा कि अब आप सती होइए, आपके पति मर चुके हैं, इनकी चिता के साथ में जल के मरिए। लेकिन मीरा ने विरोध किया कि ये अब कुरीति नहीं चलेगी समाज में। तो मीरा क्या कि आम जनता से जड़ी हुई थी, जन जागरण का काम मीरा ने किया था। अखिल जनमानस को उन्होंने श्री कृष्ण की तरफ मोड़ा था। तो मीरा ने कहा था कि मेरो तो गिरधर गोपाल है, दूसरों ने कोई झाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। तो मीरा के देवर विक्रमादित्य जब मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने मीरा को प्रताड़ित करना प्रारंभ किया कि भाभी राजघराने की मर्यादा का उल्लंघन न करिए, साधुओं की सत्संग मत करिए, हरि का कीर्तन मत करिए। लेकिन मीरा नहीं मानी। तो मीरा को मारने के लिए महल से जो फूल जाते थे उन फूलों की पिटारे में कोबरा नाग भेजा। वो श्री कृष्ण की कृपा से नवला का हार में कन्वर्ट हो गया। महल से भेजा गया कि चरणामृत है श्री कृष्ण का, इसको आप पीजिए। मीरा ने चरणामृत समझकर उस जहर को पी लिया। जहर का प्याला भेजा था उसको, वो पॉइजन अमृत में कन्वर्ट हो। बाद में मीरा अपने देवर का षड्यंत्र समझ गई तो अपने चाचा विरमदेव के पास मेड़ता सिटी चली गई। वहां से तीर्थ यात्रा पर वो निकली तो ब्रज, गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते अंत में द्वारिका पहुंची। और द्वारिका में ही उसकी भक्ति इतनी शिखर पर, इतनी चरम पर पहुंच चुकी थी कि श्री कृष्ण को भी उनके सामने झुकना पड़ा और अपने अंदर उसको समाहित करना पड़ा। तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर मीरा अंतर्ध्यान हुई थी। मीरा की कहीं कोई समाधि नहीं है, कहीं उसको जलाया नहीं गया था, उसकी कोई मृत्यु का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। बाद में उदय सिंह ने यहाँ से दूध भेजा था, मेरी भाभी है, मेरे भाई के विक्रमादित्य के कारण नाराज हो गई है वो, उसको आप लेके आइए। तो दूध जब गया उनको लेने के लिए तो मीरा ने कहा कि आप मंदिर के बाहर बैठिए, मैं मंदिर में जाके अपने स्वामी से पूछ के आती हूँ। ऐसा कह के वो गई। तो उसके जाने के कुछ ही क्षणों बाद भयंकर प्रकाश हुआ और श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर मीरा समाहित हो गई। तो जब दूध बाहर से दौड़ के अंदर गया तो उसे केवल मीरा की साड़ी का पल्लव दिखा दिया। उससे उसको जानकारी हुई कि हाँ मीरा को श्री कृष्ण ने अपने अंदर समाहित किया। पुनर्भरण करते थे। तो नौलखा भंडारा उस जमाने का रिजर्व बैंक की तरह से ट्रेस्ड और रॉयल पैलेस दोनों बैक साइड में थे। ये लाइम ग्राइंडर है जो आप देख रहे हैं, ये वाला पीछे लाइम ग्राइंडर चूना पीसने के लिए। कोलू का बेल आपने देखा होगा, वो घूमता है ऐसे, बेल के माध्यम से यहाँ पे चूना पीसा जाता है। वो जो सामने देख रहे हैं एक बात बिल्डिंग है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। हाँ जी हाँ, नीचे वाला जो फ्लैग जो दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट फ्लैग, राणा सांगा का देवरा है। राणा सांगा जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो अपना आंतरिक सुरक्षा कवच यहीं पर धारण करते थे और निश्चित विजय को प्राप्त करते हैं। जयचंद कुछ लोग होते हैं, जयचंद उनको कहा जाता है इतिहास में, वो अपने ही लोगों के साथ में गद्दारी करते हैं। राणा सांगा के साथ भी ऐसे ही हुआ था। खान भाई युद्ध में मूर्छित हो गए तो अपने ही सैनिकों ने दवा के अंदर जहर मिलाती। चलो बेटा, दोनों की संयुक्त सेनाओं को रहा था कुतुबुद्दीन शाह और महमूद शाह खिलजी की सेनाओं को। तो अपनी विजय की स्मृति में इस टावर को बनाया था, ब्रॉड, नैरो एंड ब्रॉड। देख रहे हैं इसकी शेप, बीच में से नैरो है, ऊपर और नीचे से ब्रॉड। हर स्टोन पे कार्विंग है, सिंपल स्टोन एक भी इसमें यूज नहीं है। एक भी जॉइंट आपको दिखाई नहीं देता है। जो आप देख रहे हैं कलाकृति है, पत्थर कोई भी सिंपल ऐसा पत्थर नहीं लगा, कोई मूर्ति या डिजाइन। तो इसके ऊपर जो मूर्तियाँ उत्कीर्ण है वो 2 भारतीय महाकाव्यों रामायण और महाभारत के वृत्तांतों का चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त जो मूर्तियाँ हैं उनमें भारतीय नदियाँ, भारतीय पर्वत, भारतीय वनस्पति, भारतीय वाद्य यंत्र, भारतीय शस्त्र, संपूर्ण भारतीय संस्कृति का समावेश मूर्तियों के रूप में इसमें उत्कीर्ण किया गया। पूरी भारतीय संस्कृति का समावेश एक ही स्तंभ में आप देख सकते हैं। इसे में अगर आप ध्यान से देखें, गौर से देखें, पूरा समझ के देखें तो इसी के अंदर आप 7 दिन लगा सकते हैं। इसी के अंदर पूरा सप्ताह कंप्लीट इसमें आप कर सकते हैं, फिर भी आप पूरा नहीं देख पाते। ये पूरा वर्णन पूरी भारतीय संस्कृति है इसमें। गंगा, सरद, सतीर, सिंधु, ये उसका ही एक पार्ट। और यह है पूर्वी जौहर द्वार, जिस द्वार से अभी आप आए। बीच में जो प्रांगण आप देख रहे हैं, विस्तृत भूभाग जौहर स्थल द्वितीय जौहर राजमाता कर्मावती ने किया था। 32,000 लेडीज सर्वेंट के साथ में अग्नि में प्रवेश किया था। यहीं पर द्वितीय जौहर हुआ था। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 13,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया गया था। तो ये ऐसा ही नहीं, यहाँ पर खुदाई की थी। राग की परत, हड्डियाँ, जीवाश्म गहने वगैरह उन खुदाई में उनको मिले, जो ऐतिहासिक और कारणिक बलिदान की पुष्टि करते हैं। राजा रानी टेम्पल है उड़ीसा में, उसी के पैटर्न में कोपिन, उसी का कोपिन टेम्पल है। समाधीश्वर शिव टेम्पल, भगवान शिव की 9.5 फीट की एक ही स्टोन पर बनी हुई त्रिमूर्ति है। डिस्ट्रॉयर, ऑर्गेनाइजर एंड जनरेटर। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एक प्रतिमा क्रोध में, एक समष्टि में, एक निष्पत्ति में, तीनों रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें अंदर और बाहर जीवन के विविध क्षेत्रों की झांकियाँ कार्विंग के रूप में आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट आप जाएंगे गोमुकुंड देखेंगे, जहाँ 1200 सालों से अनवरत जलधारा गिरती है।
उसके बाद जल्दी से तेज गति से आप समाधीश्वर शिव टेम्पल देखेंगे और जल्दी से ही तेज गति से गाड़ी में बैठेंगे क्योंकि पद्मिनी पैलेस सनसेट पे बंद हो जाता है। अच्छा ठीक है। इस पानी के अंदर बीच में समाधि उनकी बनी है और जो आप देख रहे हैं वो गोमुख का वो फल बना है। 50 फीट इसकी टोटल कैपेसिटी है, अभी लगभग 40 फीट इसमें पानी भरा हुआ है। 50 फीट के बाद जो पानी आता है वो झरने के रूप में नीचे चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है झरना झरे गोमुख भरे निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ों करोड़ों युग कोई तपस्या करे तब आवे। वो आप दर्शन करके आएंगे, जलाभिषेक आप कर सकते हैं। जी हाँ, समाधि किसकी है? समाधि एक संत थे निर्भय नाथ, उनकी समाधि। उन्होंने एक स्थान को छेदन किया। जैसे नीचे एक इसके जो प्रथम द्वार जो था पाडन पोल, आपने नाम पढ़ा होगा, प्रथम जो प्रवेश द्वार था पाडन पोल, उसके वहाँ से इस झरने का व्यू आप देख सकते हैं। इट वाज ए फोर्ट सिटी, पुराना किले के ऊपर था। 1857 की क्रांति के बाद बसाया गया मुख्य शहर चित्तौड़गढ़ ये है। बाद में सारे उपनगरीय बस्तियां हैं। बीच में रिवर है, गंभीरी रिवर एमपी से आती है, सिटी को दो भागों में डिवाइड करती है और बेड़च आगे से पानी चमकता हुआ आपको दिखेगा। આ બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશની 9 ફૂટ ઊંચી મૂર્તિ છે, એક સમસ્થિતિમાં, એક ક્રોધમાં અને એક મુસ્કુરાતી હોય। આ ક્રોધમાં છે, આ સમમાં છે અને આ મુસ્કુરાતી હોય। મસ્ત છે યાર। तो इस झील का निर्माण उन्होंने करवाया था। तो 1600 वर्षों से वो अपने वैभव की कहानी कहती है, इस दूर के वैभव की कहानी कहती है। 1600 वर्षों से आज तक कभी वो जल से रिक्त नहीं हुई। उस दौरान 1600 वर्षों के बीच में ऐसा भी समय आया था जब आदमी आदमी को खाने लग गया था, अन्न चारे और जल का सब जगह अभाव हो गया था। लेकिन इस 580 फीट की ऊंचाई की जो पहाड़ी है, इस पर 84 में से 24 इतने बड़े तालाब है कि वो साल भर जल से भरे रहते हैं। अभी तक वो कभी जल से रिक्त नहीं हुए। वो पानी कहाँ, वो बारिश का होता है? जी, रेनी सीजन का जो पानी है, ऐसी रचना उन्होंने की थी तालाबों की। यहाँ का जो पानी है यहीं पर रुक जाए, कम पानी नीचे बह के जाए। तो अभी आपने टर्न लिया था, वेल मछली जो होती है उसकी पूंछ की आकृति का टर्न था ऐसा फोर्ट जो आपने देखा था। ये पद्मिनी पैलेस आप देखे थे, देख के आए थे, गाड़ी में बैठ के आप इधर से आए। अभी आपने ये टर्न लिया था, ये वेल मछली की पूंछ की आकृति का टर्न है। आगे का भाग जो आप देखते हैं, सारा रिमेनिंग पार्ट जो साउथ में इस फोर्ट का है वो डियर पार्क के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जहाँ हिरणें स्वच्छंद विचरण करती है। तो अभी भी 8-10 किलोमीटर का क्षेत्र इसके अंदर है। वहाँ पे आप जाना चाहें तो 4:30 बजे से पहले आपको आना होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। यहीं पर आन बान और शान की खातिर कई तलवारें नंगी हुई, गाजर मूली लौकी तरह कई बेरियों की फंगी हुई। जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं, अरावली माउंटेन्स जो आप देख रहे हैं सामने, अरावली का अंतिम भाग है। इनके बाद में कोटाबारी, बाराबूदी, पठार प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, छोटी पहाड़ी, इसे गौर से आप देखते हैं तो आदमी जमीन पर लेटा हुआ आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जैसे द्वितीयकार मनुष्य यहाँ पर सोया हुआ हो धरती के ऊपर। वो छोटी वाली पहाड़ी, नीचे वाली पहाड़ी आप देखते हैं। स्पेस, चेस्ट एंड लेग्स। लेग्स के पास में, घुटनों के पास में, नी के पास में यहाँ पर एक स्तंभ बना है। अभी लाइट की वजह से आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं। वो एक टावर है हल्का सा, वो गौर से अगर आप देखें तो वो टावर दिखाई देता है आपको। टावर शिकार के लिए उस टावर का यूज राजा करते थे। शिकारागाह, उसमें आदिवासी ढोल नगाड़े बजाते थे, जानवर डरकर उस शिकारागाह की ओर जाते थे। वहीं पर बैठे हुए राजा उनका शिकार करते थे। तो मेहनत राजा करते थे, आदिवासी मेहनत करते थे, राजा उनका श्रेय उठाते थे कि राजा ने 9 हाथ का शेर मारा है। 9 हाथ लंबा शेर होते थे उस समय, ये अरावली रेंज में। वो शिकारागाह, वहाँ पे बैठ के राजा उनका शिकार करते थे। आदिवासी भगाते थे, जानवर डर के मैदान छोड़ के पहाड़ी की ओर जाते थे, तो वहीं पे बैठे हुए राजा उनका शिकार करते थे। आज भी ऐसे ही होता है, कार्यकर्ता मेहनत करता है, उनका श्रेय लीडर मिनिस्टर वगैरह उठाते हैं। वो जो लाइट है चमक रही है सामने, वो एशिया का सबसे बड़ा जिंक प्लांट है, हिंदुस्तान जिंक। और इधर वाला जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड में,
उधर बिरला सीमेंट है, वो आपको आगे दिखाएंगे हम लास्ट पॉइंट के रूप में। आप पूरा व्यू वहाँ से देखेंगे रामपोल गेट के वहाँ। ये फ्रंट है ये फ्रंट है, ईस्टर्न साइड है, इधर से सूर्य उदय होता है। हाँ हाँ। सन डायनेस्टी के सारे रूलर्स से पहाड़ी में एक रास्ता नीचे उतर रहा है, वो मैंने खाली एक तक ट्रेन होते हैं ये के ना वाले जो आपने विजिट किया था। देख बहुत गंदी वही पे ट्रेन होते हैं चली लास्ट में जे कड़क उधर जी टावर ऑफ फेम 12वीं शताब्दी में एक जैन धनी व्यापारी ने बनाया था अपने कीर्ति और यश में वृद्धि के लिए। विक्ट्री टावर ऑफ फेम कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ है। जैन धनी व्यापारी जीजा नाम का बघेरवाल महाजन यहाँ पर आया था। बहुत पैसा था, धन था, संपदा थी, लेकिन कीर्ति और यश नहीं था। तो अपनी कीर्ति और यश में वृद्धि के लिए 7 मंजिला स्तंभ बनाया। चारों तरफ आदम की प्रतिमाएं बनी हुई है, आदिनाथ को समर्पित। ये आदिनाथ जैन टेम्पल है। अभी दोनों का केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है, सफाई हुई है, केमिकल से वॉश किया गया है। तो इसमें 7 मंजिले हैं। कार्विंग इसमें भी नाइस कार्विंग आप देख सकते हैं। तो सभी जैन तीर्थंकर कुछ हमारे के जैसे सभी की मूर्तियाँ इस पर उत्कीर्ण जैन आर्किटेक्ट। ये जो आप देख रहे हैं टावर ऑफ विक्ट्री जो आप देखकर आए थे, 9 मंजिल का है, 21 मीटर ऊंचा, सॉरी 33.19 मीटर ऊंचा है। આજે 26મી તારીખ થઈ, 26 નવેમ્બર ફરવાનો છેલ્લો દિવસ ઉદયપુરમાં આવ્યા છે સિટી પેલેસ। આ અમારા ગાઈડ છે મિસ્ટર કોમલ। जनता के लिए पीतल का सूरज, इसी के अंदर आपको दिखाऊंगा रियल गोल्ड सोने का सूरज। ये जगह कहलाती थी पहले दीवाने आम, यहाँ की जनता आती थी, राजा का राज की लक्ष्मी और हाथी की लक्ष्मी। अभी 15 साल हुए इसको डेवलप करके। अभी के राजा ने यहाँ पर गार्डन बनाया। हम लोग जहाँ खड़े हैं यहाँ से राजा बैठते थे घोड़े के ऊपर बैठने के लिए प्लेटफॉर्म, तो वहाँ ऊपर चढ़ के हाथी के ऊपर बैठने के लिए प्लेटफॉर्म। अब हाथी घोड़े रहे नहीं तो सामने खड़े हैं पेट्रोल वाले हाथी, क्योंकि कार पार्किंग वहाँ बना दिया ना नया प्लेटफॉर्म। 1500 फुट लंबा है ये महल, 1,500 फीट, 800 फुट इसकी चौड़ाई है और 105 फीट ऊंचा है। करीब 5 मंजिल का बिल्डिंग। सबसे पहले इसको बनाया था महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी। 16 मार्च 1559, 16 मार्च 1559। फिर जैसे जैसे राजा हुए 450 साल में 22 राजा ने इसको कंप्लीट किया। जैसे राजा 450 साल 450 ईयर्स ओल्ड। जैसे जैसे राजा होते गए ऐड करते गए, तो लास्ट कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ उसमें 1955 तक। ये उदयपुर राजघराने का राज चिन्ह है, अंग्रेजी में कहते हैं कोट ऑफ आर्म्स। सूर्यवंशी राजा है तो ऊपर सूरज है, एक तरफ भील सैनिक है, एक तरफ राजपूत सैनिक, बीच में चित्तौड़ पुरानी राजधानी उदयपुर की। वो नीचे एक श्लोक लिखा हुआ हिंदी के अंदर, जो दृढ़ राखे धर्म को ती ही राखे करतार। इसका मतलब होता है जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है। लेकिन अभी सरकार थोड़ा सा उल्टा कहती है, अपनी रक्षा खुद करो, सरकार को परेशान बिल्कुल भी मत करो। तो यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको 2 महल, राजा का महल और रानी का महल। राजा के महल को हम लोग हिंदुस्तान में कहते हैं मर्दाना महल, रानी के महल को कहते हैं जनाना महल। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है लेडीज फर्स्ट, इस महल में आती जेंट्स फर्स्ट, क्योंकि पहले जाएंगे राजा के महल। पिता की तस्वीर है, इनका नाम था महाराणा भगवत सिंह जी। 1984 में इनका डेथ हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे और क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक। तो इस महल को म्यूजियम इन्होंने बनाया 1969, क्योंकि 1955 तक इनके पिताजी इस महल में रहते थे। 1955 से 62 ईयर्स है। अभी हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन। तो हमारे राजा का एक सपना है हर चीज़ धूप से चलाएं, सोलर से। कुछ इंट्रोड्यूस किया है, देखो सोलर बोट है उधर, सोलर बाइक है, सोलर स्कूटर है, सोलर रिक्शा। तो अगली बार आओगे ना ये सब चीज़ आपको रोड पे दिखेगी। अभी उस कॉम्प्लेक्स में चल रही है। लास्ट ईयर इनको इस चीज़ के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, 2005 यूरोपियन सोलर अवार्ड ही गॉट इन जर्मन। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे राजा को मिली है ना, अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं इसको पच्ची काड़ी, मतलब काचनो काम। नीचे टाइल्स लगा हुआ है जापान का, जो 1932 में स्पेशल ऑर्डर देके जापान से मंगाया। और ये यहाँ से 50 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी का मंदिर, नाम सुना ही होगा आपने, नाथद्वारा। उसी रास्ते बीच में आता है एकलिंग शिव मंदिर। और ये सारी टाइल्स इंग्लैंड की है ना, 1932 में इंग्लैंड से मंगाई। और ये मूर्ति है लक्ष्मी जी की, तो आंसू कहवाए गज लक्ष्मी। तो गज लक्ष्मी सामे है, गज लक्ष्मी जोड़ा है ना, गरनी लक्ष्मी। तो दर्शन करके हम लोग ऊपर चलेंगे। बीच में 2 गोरों के बीच में एक इंडियन है, ये अभी राजा के लड़के हैं। इनका नाम है लक्ष्य राज सिंह जी।
ये भी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में। ये अवार्ड मिला था इनको लास्ट ईयर 2005 यूरोपियन सोलर अवार्ड। ये पहले से भी एक ट्रस्ट चलाती है, इस ट्रस्ट का नाम है MMCF, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। अभी जो राजा है वो ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, चेयरमैन। ये तीर कमान और वो बंदूक, तो ये सब भील आदिवासी यूज़ करते थे गाँव के लिए। और ये बंदूक 400 साल पहले ईरान से मंगाई, इसको कहते हैं गन पाउडर गन। जब भारत का पाउडर तैयार है, अब अंदर देखेंगे ओरिजिनल हथियार मारना पड़ता है। मैं 25 किलो जमनी बाजू में सीधा ला पता 25 किलो सेना, उनका सेनापति जाला मान सिंह, वो बहु महाराणा प्रताप जैसा चेहरा, ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप खुद खड़े हों। लेकिन ये सब काल्पनिक चित्र हैं। 1935 के बाद उदयपुर के लोकल आर्टिस्ट ने कैनवास के ऊपर ऑयल पेंट किया है, मतलब आर्टिफिशियल चित्र। अब दिखाते हैं अकबर का सेनापति बहलोल खान। महाराणा प्रताप ने इसको तलवार से एक वार किया, पूरा घोड़ा सहित 2 टुकड़ा कर दिया। एक जवार में घोड़ा से 2 पीस कापी ना किया। अब सोचो महाराणा प्रताप के शरीर में कितनी ताकत थी। उसके बाद ये लड़ाई हुआ था हल्दी घाटी के अंदर, नाम सुना ही होगा आपने। ये हल्दी घाटी का सैटेलाइट यानी कि ऊपर से लिए वो फोटो है, छाया चित्र 2002 में लिया। उसके बाद ये लड़ाई जो हुआ था ना इस मैदान में हुआ था। आज से करीब 400 साल पहले हिंदुस्तान में ये लड़ाई हुआ था। इस लड़ाई का नाम है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 18 जून 1576। राइट हैंड साइड में मुगल कैंप है अकबर बादशाह का, लेफ्ट हैंड साइड में राजपूत कैंप महाराणा प्रताप का। राजपूत सेना में सबसे ज्यादा थे भील आदिवासी, भील ट्राइबल्स, और राजपूत अगेंस्ट में मुस्लिम आर्मी। मुस्लिम आर्मी का चीफ था जयपुर का राजा सवाई मान सिंह, अकबर का दूसरा सेनापति। इस युद्ध में चेतक घोड़े का एक टांग कट जाता है ना, 3 टांगों से चेतक ने 6 किलोमीटर दौड़कर 22 फीट का एक नदी पार किया। इस नदी का नाम था बनास नदी। अब देखिए चेतक के ऊपर वजन कितना रहता था। जयपुर के राजा थे मानसिंह। इनका हाथी बड़ा समझदार, जब भी युद्ध करने आता हाथी की सूंड में तलवार से युद्ध करता। तो महाराणा प्रताप ने क्या सोचा, अपने घोड़े को लगा दो नकली सूंड हाथी का, ताकि हाथी ऐसा समझेगा हाथी का बच्चा है, तो किसी बच्चे के ऊपर अटैक नहीं करता है। तो कंफ्यूज में डालने के लिए नकली मास्क लगाया हाथी का, बिकॉज एवरीथिंग फेयर लॉ ऑफ नॉन बिजनेस। ये महाराणा प्रताप का छोटा भाई शक्ति सिंह, नाम सुना होगा आपने। महाराणा प्रताप छोटा भाई शक्ति सिंह, आपस में किसी बात पे झगड़ा होता है, ये मिल जाता है अकबर बादशाह से। लेकिन एक बार जब महाराणा प्रताप का घोड़ा जख्मी होता है तो शक्ति सिंह अपना घोड़ा देके महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर निकालते हैं, क्योंकि खून का रिश्ता खून का होता है, इतना ब्लड थिकर देन वाटर। महाराणा प्रताप ना तो इस महल में कभी आए थे, न इस महल को देखा, न इस महल में कुछ कंस्ट्रक्शन कराया, बिकॉज ही लिव्स ऑल लाइफ इन द फॉरेस्ट। महाराणा प्रताप जिंदगी भर जंगल में रहे। ये सिर्फ परिचय देने के लिए आपको बताया। आज है 9 चौकी महल मंदिर। पुराना चुना है, मार्बल होता है ऐसा, क्योंकि मार्बल को हाथ लगा के पता चलता है, मार्बल हमेशा ठंडा होता है। एक पत्थर है मार्बल का 8 बाई 8 का साइज। क्या दिख रहा है आपको, नहाने का या फिर हवन करने का। न तो ये नहाने के लिए काम होता, न ही हवन करने के लिए। इसका नाम क्या था, लक्कू मीन्स 1 लाख। सोने और चांदी के सिक्के इसके अंदर बढ़ते। जब कोई नया राजा बनता है, ऐसे राजा का पहला बेटा पैदा होता, तो नीचे पब्लिक में डाले और नीचे भगवान के ऊपर वो लोग नहीं आता, तो मंदिर में सेफ हो गया, ताकि आप उसके ऊपर नहीं चल सके। ये नक्शा बनाया, ये मार्बल का एक पत्थर। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, लिखा ना यू आर हियर। ये पीछे वाला लेक जो इस महल के पीछे बना हुआ है, आपको ऊपर से दिखाई। फतेह सागर तालाब, उदयपुर के पहाड़ को बोलते हैं मंगरा, हमारे गुजराती में डूंगर डूंगरी, यहाँ क्या है मंगरा मंगरी हमारी लोकल लैंग्वेज में। तो ये मंगरा लिखा हुआ है, ये पूरा नक्शा बनाया हुआ है। देखिए दरवाजे बहुत छोटे हैं, नोट किया होगा आपने, बहुत छोटे छोटे हैं। उसके थोड़ी एक तो राजा के सामने जब भी कोई आता सर झुका, दूसरा एक साथ किया। लेकिन अभी दरवाजा का नाम क्या है, टाटिया तो माथा फोड़ दबाया, टाटिया मतलब